Hello students, today we are going to learn word processing. This is unit 1 of part B, vocational skill in class 9th IT. In this unit we have 4 different sessions. Session 1, getting started with word processing. Session 2, setting up writer and formatting document. Session 3, formatting page, spell check and autocorrect utilities. Session 4, tables and printing. But here we are going to complete only session 1, getting started with word processing, and session 2, setting up writer. But before proceeding to the next, let's understand about the software. Here we are going to use the software that is Writer. Yes children, this is OpenOffice Writer. Okay. And this OpenOffice Writer is the word processing part of OpenOffice software package provided by company Apache. And this is completely free to air. Yes children, this is completely free to air. अभी तक हमारी हैबिट क्या थी? अभी तक हम लोग यूज़ करते थे MS Office, जिसको हमको एक्चुअली परचेस करना होता था. बट दिस सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटली फ्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with what is word processing. See children, first of all, this is required to understand कि what is word processor. See, a word processor is a software program that enable you to create, edit, print and save the document. It provides many tools and the formatting features that helps you in order to make the presentation, make the document more effective. Okay. Now we have some features of word processor like ease. Yes, it is easy to use and it speed up your documentation. Okay. Now we have editing features too. एक बार इसको लिखने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हो. ठीक है. आफ्टर दैट सम फॉर्मेटिंग फीचर्स वेरी मच रिक्वायर्ड. नाउ वी हैव सम परमानेंट स्टोरेज. Yes, after writing the document we can store for the further use. Okay. Graphics and printing features too. And yes, some vocabulary and spell check features too. Now start with margin and indent. See children, we have margin. Margins is actually the distance between the edges of the paper to the area from where we are going to start the content actually. This is the distance between the edges of the paper to the content. Here you can see different types of margin too. That is left margin, right margin, top margin, bottom margin, gutter margin and mirror margin. See, जब आप लेफ्ट साइड के एजेस से वो स्पेस कवर करते हो तो दैट इज लेफ्ट मार्जिन. इन द सेम वे वी हैव राइट मार्जिन, टॉप एंड बॉटम. बट याद रखने वाली एक चीज़ है, दैट इज गटर मार्जिन. सी, याद ये रखिएगा, दिस इज ओनली द एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बाइंडिंग. जब हमको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ये लगे कि आपको इसको बाइंड करवाना है, फॉर दैट यू कैन कंसिडर दिस गटर मार्जिन. This gives the extra space for binding. Okay. And next is mirror margin. Mirror margin is children useful when you take the printout in both sides of the paper. Okay. Now we have indent. See, indent is again the space that you consider from the margin to the text starting area. मार्जिन के बाद हम जहाँ से एग्जैक्टली टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, दैट एरिया कवर्ड एज द इंडेंट. ओके. वी हैव टाइप्स ऑफ इंडेंट टू, लाइक वी हैव फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंडेंट. कम फॉर द नेक्स्ट चिल्ड्रन. नाउ वी हैव सम डॉक्यूमेंट व्यू. डॉक्यूमेंट व्यू लाइक व्यू हैव प्रिंट लेआउट, web layout, full screen. See, print layout is a default view जो हमें हमेशा दिखता है. Actually what we want in printout, जो हम printout में देखना चाहते हैं, this is the same view that we can see on the screen.
एंड नेक्स्ट इज वेब लेआउट व्यू। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाओगे तो जब भी आप उसको अपलोड करने के बाद वो व्यू कैसा दिखेगा उस पैटर्न पे आप देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन को, दैट अलाउ बाय वेब लेआउट। नाउ वी हैव फुल स्क्रीन। सी चिल्ड्रन, फुल स्क्रीन इज एप्लीकेबल विद बोथ। आप प्रिंट लेआउट में काम कर रहे हो या फिर वेब लेआउट में, इफ़ यू वांट टू सी ऑन द फुल स्क्रीन जहाँ पर आपकी जो स्क्रॉल बार और स्टेटस बार है वो ना दिखें, दैट इज़ ओनली यूज टू एनहांस द रीडेबिलिटी, दैट इज़ ओनली फॉर योर्स। आपकी रीडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अगर आप उसको पूरी स्क्रीन पर देखना या पढ़ना चाहते हैं तो दैट व्यू इज यूजफुल। ओके, नाउ कम विथ some non-printing character. Yes children, there are some character that is non-printing. अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर होते हैं जो प्रिंट ना हो। Yes children, here we have some non-printing characters. अब ये non-printing characters कौन कौन से हैं? Like कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, not to show to others. Okay, like आपने अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ भी स्पेस दिया, जहाँ भी आपने टैब की सेटिंग की और जहाँ भी आपने पैराग्राफ चेंज किया, अगर वहाँ अपनी रीडेबिलिटी के लिए आप वो कोई मार्क देखना चाहते हो, कोई सिंबल देखना चाहते हो, दैट कैरेक्टर कम अप विद द नेम ऑफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। लाइक एक आपके पास दिखेगा ऑपोजिट पी की तरह का, ये होगा आपका पैराग्राफ मार्क, डॉट आएगा आपके पास फॉर दी स्पेस और आपके पास एरो मार्क आएगा अगर आपने कोई टैब यूज़ किया है। And remember the shortcut for this is Control F10. Come on children, let's have some practical too. कुछ मैं आपको practical भी show कर दूँ। You can see here. This is your screen of writer. Yes children, I was talking about the same. ये है हमारा writer का screen. On the corner you can see by default its name is Untitled 1. Okay, और यहाँ पर लिखा हुआ है Open Office Writer. तो दिस इज़ माई राइटर स्क्रीन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वी हैव सम सैम्पल कंटेंट जिसकी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वी हैव सम कंटेंट फॉर द सैम्पल, ये हमारे सैम्पल के लिए कुछ कंटेंट है। अब यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि देखिए जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है इसकी, ये थोड़ा ज़्यादा गैप लिए हुआ है, दैट इज़ इंडेंट फर्स्ट लाइन। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन्स है वो वहाँ पर हैंगिंग इंडेंट यूज़ हो रहा है। नाउ कम फॉर द व्यू। हम डिफरेंट लेआउट्स देखना चाह रहे हैं अपने पेज की ऑलरेडी, बिकॉज प्रिंट लेआउट इज़ दी डिफ़ॉल्ट व्यू, तो वी आर इन अ प्रिंट लेआउट। अगर हम इसको स्विच करते हैं वेब लेआउट में, इट विल कम अप लाइक दिस। ओके, और अगर हम इसको वापस ले जाना चाहते हैं, अगेन कम फॉर प्रिंट लेआउट। और इन्हीं दोनों का अगर आप फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो यू हैव फुल स्क्रीन व्यू टू। नाउ you have to look some characters that is non-printing character. Okay, here you can see I press only the shortcut key जो मैंने आपको बताया हुआ है, shortcut key is Control plus F10. Okay, I press now Control plus F10, तो you can find कि जहाँ जहाँ पैराग्राफ के स्टार्ट और एंड है वहाँ पर यह पैराग्राफ मार्क बनकर आया है, जहाँ पर टैब्स स्पेस की सेटिंग है वहाँ पर डॉट है। अब मैं आपको थोड़ा सैम्पल दिखा दूँ यहाँ पर। लाइक हमने यहाँ पर से चेंज कर दिया एंड आई प्रेस टैब हियर, आई प्रेस टैब हियर, आई प्रेस टैब हियर। आप देख रहे हो जहाँ जब भी मैं टैब प्रेस कर रही हूँ वहाँ एक छोटा सा एरो मार्क आ रहा है। थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, सपोज ORG डॉट, मैंने यहाँ एक स्पेस दिया, स्पेस दिया, स्पेस दिया अगेन, तो ये जितनी बार भी मैं स्पेस दे रही हूँ यहाँ, यू कैन सी द डॉटेड लाइन इज अपेयर। और जितनी बारी भी जहाँ भी पैराग्राफ चेंज होगा दैट ऑल्सो कम अप विद दी पैराग्राफ टैग। तो दीज आर सम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ओके, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आप F10 से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और जब आपको इसको एंड करना हो अगेन यू कैन प्रेस बाय F10. ओके, तो दीज आर सम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ वी हैव हेडर एंड फुटर। सी चिल्ड्रन, very useful content, very useful property of word processor. See, sometime what happens, sometime we want that we should write something as a on the top of the page and on the top of the every page, and sometime we need to write that some content should be displayed on the bottom of the area on every page. So for that we have used header and footer.
Header definitely come up on the top and footer definitely come up on the bottom, but here we can set it by default for all the pages, and normally the publisher name, writer name, etc. these things are coming as a, आपने बुक में देखा होगा, आपके बुक में जो भी चैप्टर नेम होते हैं वो लगभग हर पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं इन अ सिमेट्रिकल वे, तो वो जाके बार बार नहीं लिखने होते. दैट कैन बी सेट बाय एज अ हेडर और फुटर एज पर रिक्वायरमेंट. ओके, now we have another important content, that is find and replace. See children, find and replace is another very useful thing, very useful feature. What happened in this, that whenever we are having some content, तो उसमें अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड मिस स्पेल हो गया आपसे, या मिस्टेक हो गया, या उसका आपने कोई रॉन्ग नेम लिखा हुआ है, अब उसको आपको रिप्लेस करना है, तो आप क्या करोगे? लाइन बाय लाइन वो कंटेंट जाकर रीड करोगे, वो पूरा डॉक्यूमेंट रीड करोगे? नो, दिस इज नॉट द गुड वे. फॉर दैट यू कैन यूज फाइंड एंड रिप्लेस. ओके, चलिए हम लोग इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं. एंड शॉर्टकट सबको मालूम होगा और होना चाहिए, दैट इज Ctrl+F. ओके, चलिए, बट बिफोर दैट मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो. फिर हम चलेंगे और सीधा सारे प्रैक्टिकल्स देख लेंगे. See, here we have some formatting document. Now another very important concept, that is formatting. Formatting is always and always required. जब भी अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल और इफेक्टिव बनाना होता है तो we need formatting. Okay, तो formatting you can see this is the general arrangement of text called formatting. अब formatting बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, like first of all font formatting. तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग के साथ जो भी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं, दैट कंसिडर हियर एज अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. नाउ वी हैव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेट टू. सो स्टार्ट विथ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. अभी हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं. हियर यू विल सी सम इम्पॉर्टेंट अगेन द फीचर्स, लाइक यू कैन एबल टू डू द सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो डेफिनेटली यू कैन डू. सो लेट्स कम with the font formatting. चलिए हम वापस से चलते हैं अपने राइटर में. Here we are on the writer. Now we are going to apply the font formatting. Okay, font formatting में हम देखते हैं, सपोज हमें इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट द कंटेंट. जो भी पर्टिकुलर लाइन, जो भी पर्टिकुलर कंटेंट हमें करेक्ट करना है in terms of font formatting or character formatting, select it. Now go to format menu. Now you can see here the character is up here. Now click on character. Okay, character को क्लिक करते ही आपके पास character formatting का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, and this dialog box is tab based. Here you can see number of tabs are here, like font, font effect, position, hyperlink, background, etc. तो हमारे पास बहुत सारे टैब हैं, वन बाय वन हम सबको देखते हैं. हियर यू कैन सी इन दिस टैब वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज. बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या इसका स्टाइल चेंज करना है, दैट वी कैन चेंज फ्रॉम हियर. कम फॉर फॉन्ट इफेक्ट. सी, फॉन्ट इफेक्ट में हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक देखिए अंडरलाइन तो आप वैसे भी कर लेते हो यू से. Here you can put overline also. और जो भी चेंजेस मैं करूँगी आप यहाँ नीचे आपके पास प्रीव्यू दिख रहा है, वहाँ से आप देख लोगे. सपोज हमने ये किया तो यू कैन सी लाइन कमिंग ऑन द टॉप. यहाँ पर हमने किया तो यू कैन सी दिस इज फॉर अंडरलाइन. और यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, किस तरह के लाइन्स आप अंडरलाइन में लेकर आना चाहते हो, डैश लेकर आना चाहते हो, या डबल या सिंगल लाइन और डॉटेड लाइन और समथिंग. ओके, तो दिस इज फॉर अंडरलाइन. अभी मैं इसको विदाउट पे कर देती हूँ, सो दैट वी कैन सी वन बाय वन फॉर ऑल. ओवरलाइन, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस राइट नाउ. आफ्टर दैट वन मोर थिंग यू कैन सी हियर, दैट इज अ स्ट्राइक थ्रू. स्ट्राइक थ्रू भी देखिए क्या होता है. यू फाइंड जो भी वर्ड हमने लिखा है, जो भी टेक्स्ट या कैरेक्टर हमने लिखे हैं जो सिलेक्टेड है, उसमें कट मार्क दिख कर आ रहा है. तो you can see the cut mark here. Sometime it is required that
you want to show the public that earlier it was the content, now it has cut it off. For that, this property strike through is useful. Now here you can see some another thing also, like effect में आप देना चाहते हैं कुछ effect, यहाँ पर color change करना चाहते हैं and you want to make a shadow of that, थोड़ा सा shadow आएगा, कुछ outlines आएंगी, अगर इस form में आप अपना content चाहते हो, if not then like that shadow, if not then like that, और या फिर blinking, ये blinking वो content आपका जो भी character है वो continue blink करता रहेगा. ओके तो वॉट एवर फॉर्मेट, वॉट एवर थिंग्स, शेडो है या आउटलाइन है या स्ट्राइक थ्रू है, जो भी आप लगाना चाहते हो, यू आर फ्री टू अप्लाई. तो यहाँ से आप सारे चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं इसे. मैं इसको स्ट्राइक थ्रू हटा दे रही हूँ, अदरवाइज इट विल लुक वेरी ऑड. ओके, थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया लाइक पोजिशन में. नाउ दिस थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड. यहाँ पर दो कंटेंट आपको बहुत ज़रूरी मिल रहे हैं, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. चलिए फॉन्ट में हम थोड़े से चेंजेस यहाँ कर लेते हैं और इसका डिस्प्ले देखते हैं, देन वी विल मूव फॉर अनदर. सी यू कैन सी द चेंजेस दैट वी हैव डन हियर. जो भी हमने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर हो गए हैं. हम दूसरा कंटेंट सेलेक्ट करते हैं और उस पर चलते हैं कुछ और फॉर्मेटिंग करने. बट बिफोर दैट हमें जो नेक्स्ट करना है, जो हमें फॉर्मेटिंग करनी है, दैट विल बी सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सी फॉर डूइंग सो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं अबाउट सुपर स्क्रिप्ट. सी व्हाट हैपेंड कि समटाइम इफ यू आर राइटिंग इन अ मैथ्स सब्जेक्ट, तो यू नीड टू वर्क विथ ए स्क्वायर. ओके, तो अब आपको लिखना है ए स्क्वायर, बट नॉर्मली यू कैन राइट ए एंड 2, तो इट विल कम अप लाइक दैट. दिस विल नॉट गो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे लिखने से ए स्क्वायर. फॉर दैट व्हाट यू वांट टू डू, you want to make this 2 as a square. For that you click this 2, select this 2, again go to character formatting. Now you have some effect on position. यहाँ पर आप superscript है, symbol देख रहे होगे, इस तरह से आप इसको क्लिक करोगे and you will see the effect. Now you will get the full marks as writing a square. इसी तरह जब आपको लिखना होता है किसी केमिस्ट्री क्लास में H, सपोज यू आर राइटिंग H2O, देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट मार्क्स इफ यू आर राइटिंग द H2O लाइक दैट. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you want to shift this to little bit down from the parallel text line. For that you are going to apply subscript from here. फिर से आप जाएंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, पोजीशन टैब में, और पोजीशन टैब में आपके पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट. यू विल अप्लाई द सबस्क्रिप्ट हियर. ओके, नाउ यू कैन सी दिस H2O विल वर्क एज अ सेम H2O जो आपने पढ़ा है. ठीक है, अगेन यू हैव अ लुक फॉर सम चेंजेस. थोड़ा सा हम चेंजेस और देख लेते हैं, लाइक एनी कंटेंट इज हियर एंड नाउ वी हैव सम फॉर्मेट्स. अब हमारे पास कुछ और फॉर्मेट्स कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में चीज़ें होंगी, उसको भी देख लेते हैं. Here children, you have some rotation. If you want, then you can rotate your text as per your wish. 90 डिग्री या जितने भी डिग्री यहाँ से आप चेंज करेंगे स्केल को, उतने डिग्री में आप अपना कंटेंट को शिफ्ट कर लेंगे. Next you can see this is hyperlink. Hyperlink is used to make the text as a hypertext. Okay, hyperlink says कि आपने जो भी कंटेंट सेट किया है, अगर आप उसको किसी वेब के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या अपने ही सिस्टम की किसी दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन गिव द एड्रेस. नाउ वी हैव बैकग्राउंड. दिस इज अ सिंपल वन. जैसे हम टेक्स्ट का बैकग्राउंड लगाते हैं, वी कैन अप्लाई एनी बैकग्राउंड ऑन द सेलेक्टेड एरिया एंड वी कैन अप्लाई ऑन ओके. तो यू कैन सी द चेंजेस. अभी हमने हाइपरलिंक के चेंजेस नहीं किए हैं. I think this much is sufficient for the formatting of. अच्छा, one more thing, you want to you want to see also the find and replace. So here I can see I can show you the content of find and replace also. Suppose any content you want to change from here, so what you have to do, you have to go to find and replace and simply you can change. Okay.
सपोज यू हैव एनी टेक्स्ट, यहाँ से आप किसी, सपोज आपका वर्ड स्टार है, वर्ड स्टार को आप वर्ड परफेक्ट में चेंज करना चाहते हैं. सो फॉर दैट अगेन यू हैव टू गो टू फाइंड एंड रिप्लेस. ओके, तो फाइंड एंड रिप्लेस में आप जाएंगे और एडिट मेनू. सपोज आपको उसमें से कोई एक वर्ड, हम सपोज वर्ड को चूज करना चाहते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस से उसको फाइंड करना चाहते हैं कि वेयर इट इज. कम एंड हैव एंड फाइंड एंड रिप्लेस आपको मिलेगा एडिट मेनू में, एंड इट्स शॉर्टकट कीज Ctrl+F. Click on this find and replace option. Here this dialog box will come up with you. Here you can write what you want for search. I'm writing word and click on find. You can see हमारा जो वर्ड जहाँ भी हमने लिखा था ये डायरेक्ट हाईलाइट हो गया जहाँ पर भी इसकी पोजीशन थी. अगर हम इसी तरह सबको भी करना चाहते हैं तो वी कैन फाइंड. नाउ इफ वी वांट टू रिप्लेस इट, इफ वी लाइक राइटर, तो आई एम राइटिंग राइटर and clicking on replace. You can see yes, make it yes, and now I'm going to close it. अब ये देखिए यहाँ पर हमने MS वर्ड लिखा था, अब ये फाइंड एंड रिप्लेस से पहले क्या किया, इसने फाइंड किया वर्ड को और उसके बाद उसके पास रिप्लेस कर दिया उसको राइटर से. दिस आई हैव क्लिक्ड ओनली फर्स्ट टाइम. अगर हम चाहते तो जितने भी जगह जहाँ भी वर्ड प्लेस्ड है, अगर हमने फाइंड ऑल और रिप्लेस ऑल किया होता तो जहाँ जहाँ भी वो वर्ड फाइंड है वो सारा चेंज हो गया होता. ओके, आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस क्लास. नेक्स्ट बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आई होप बेटा आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन.